Mananiya Pradhan Mantri ji, respected leaders of the tech industry, and dear friends, it is my tremendous pleasure and privilege to welcome all of you to the 29th edition of NASSCOM Tech and Leadership Forum. Uh, this is our first ever virtual forum connecting thought leaders and IT community across 30 countries. Welcome to all of you. प्रधानमंत्री जी पिछले वर्ष इसी समय हम सब मुंबई में थे for 20LF 2020 or we were aware of the COVID virus that had broken out in China, but we were very hopeful about 2020. We had a record year in 2019, and none of us at that point knew the extent to which our lives and our businesses would get disrupted in a matter of weeks. 2020 was the ultimate stress test for the industry, for their resilience, for its relevance, and for its staying power. जिस समय लॉकडाउन का घोषणा हुआ उसी समय बहुत सारे ग्लोबल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने तेजी से अनाउंस कर दिया दिस इज द एंड ऑफ इंडियन आईटी अभी और कुछ नहीं कर सकेगा दे कैन नॉट ओवरकम दिस लेकिन हम हारने वाले नहीं थे एंड हियर आई वांट टू एक्सप्रेस हाउ ग्रेटफुल वी आर टू यू टू द गवर्नमेंट our Minister of IT, MeitY, the DOT, who have worked with us every step of the way to overcome every single challenge that we faced as an industry. Today, I feel really proud that the world is not just applauding India's fight against COVID, but the world has also taken note of the tremendous efforts of India's tech industry and how we have kept the world's business running, schools running, hospitals running, banks running. And it's not just the large companies, our startups, our tech SMEs, our product companies, everybody stepped up in the fight against COVID and we worked together to ensure that technology became the lifeline for our lives and our livelihood. Pradhan Mantri ji, I am very proud to represent an industry जो भविष्य के हाथों अपना भाग्य नहीं सौंपा इनफैक्ट हम खुद अपने भविष्य के निर्माता बने the opportunities ahead of us are tremendous to rebuild a future we want and today I'm really thrilled that I have with us several leading voices of the industry to share some of these opportunities with you. So I would like to invite Rishad Premji, Chairman Wipro, to start off the discussion with his thoughts. Thank you, Debjani, and thank you, respected Pradhan Mantri ji, for joining us for your second time at the NASSCOM Technology and Leadership Forum. I remember the first time you joined us in 2018, we launched the Future Skills platform, which has become an important part of the industry. Jaise aapko pata hai, sir, technology is becoming the lifeline for us as individuals and as for businesses. And if there was ever any doubt, I think 2020 has shown us just how foundational technology has become. This is also reflected in the fact, sir, that the industry this year, in the year finishing March 31st, 2021, will grow at 2.3%. It will add $4 billion in revenue and create net new jobs of 138,000 people, net new jobs this year. One of the key reasons, sir, that the industry has been able to adapt well is because of the support we have gotten from the government to enable our employees to work from home. Within the first few weeks of the lockdown, over 90% of our employees were working from home. And even today, about 90% of our people continue to work from home. What is most impressive is that the government has appreciated the value of a permanent model, of a permanent hybrid model, sir, jahan log partially work from office and partially work from home. This hybrid model, I believe, will be a huge competitive advantage for the industry. It will be more inclusive for employees who need flexibility to work from home. And also as a nation, it will allow us to access talent from anywhere. Jahan bhi log hai, hum unhe access kar sakte hain. This is a new model and we will have to work together to figure out what is the optimal, ultimate structure this new hybrid model will have. Given the strong partnership between MeitY, between the Department of Telecom, between NASSCOM and the industry companies at large,
we can strengthen India to truly make us a talent nation for the world by accessing talent from anywhere as this work from home model becomes a reality. The continued progressive policies of the government will continue to help us progress on this path. So thank you again for your time. Thank you, Rishad. I would like to request Tiger Tyagarajan, CEO Genpact, to share his comments. Thank you, Debjani, and thank you, Mr. Jeet, for the opportunity to be able to speak to you. I wanted to personally thank you for the recently announced OSP reforms that the government announced. And not only was it an important short-term measure to address the pandemic, but even more importantly, it truly illustrates the ability to build policies that can support the growth of this industry over the very long term. While the COVID crisis in India is under control right now, more than 90%, as Rishad said, of our employees are still working from home. And in many cases, they're working from their hometowns. And as business leaders, we are now evaluating what is the right structure for the future, how this industry can move forward from originally being very concentrated in metros, very concentrated in operating centers. Is it possible? And can we dream of a vision where actually this is more disaggregated across the hinterland of India? This can be a huge positive for a country like India, where growth is spread across multiple smaller towns and talent is accessed from those towns. They work there, they live there, and they thrive there. And the multiplier effect that can have beyond just the metro cities in terms of its impact on education, on the economy, on healthcare, on retail in those towns, that is the vision that I think is really, really exciting. To accelerate that kind of a shift, it'll be great if the government can consider supporting the STPI, SEZ kind of centers in the distributed landscape of India, in the smaller towns, and also strengthen India's data protection and data privacy laws, because that's obviously a big and important concern for our industry as we continue to grow and spread. But I think it's really exciting to be able to sit at the beginning of that kind of a trend. Thank you very much. Thank you, Tiger. I would now like to request Rekha Menon, Chairperson Accenture India and Vice Chairperson NASSCOM. Namaste. Honorable Prime Minister, I want to start by thanking you for the support given to our industry in the last year. We have huge opportunities ahead of us. The pandemic, for example, has accelerated digital transformation across the world. And this presents us in India with a big economic opportunity, both locally and globally. And our over 4.5 million strong technology talent base can act as a foundation for India to emerge as a digital talent nation, which is really to become the skill hubs for the world. And for that to happen, we have to do three things. One, continue investing in the upskilling and reskilling of our existing talent. Two, broad base our talent source, which is beyond the metro locations. And three, build the talent pipeline at the college and school level. To that end, as Rishad mentioned, in 2018, you had launched the Future Skills platform that NASSCOM and METI collaborated on. We have now launched its next avatar, which is Future Skills Prime, which is first of its kind national digital skilling platform, which is again collaborating across multiple stakeholders, METI, NASSCOM, government, academia, industry, all with one common vision, which is to build digital skills among students and professionals across India. Second, the national education policy has identified all the right measures to lay a strong foundation at the school level. And we would urge the government for its speedy implementation. And third, but not the least, we would request that the talent and skills theme be strongly embedded in your vision of technology so that India really becomes the digital capital of the world. Thank you. और प्रधानमंत्री जी, आपको जान के खुशी होगा कि फ्यूचर स्किल्स प्राइम within 2 months of launch has 140,000 Indians being trained on it. तो बहुत ही traction अच्छा हो रहा है, and we'll keep you updated. Last but not the least, my tremendous pleasure to introduce
Padma Shri Sridhar Vembu, CEO Zoho, to say a few words. Sridhar. Namaskar. Atmanirbhar Bharat is a great initiative, and thank you for your vision, our respected Pradhan Mantri ji. Now it's time for the private sector to step forward to realize that vision. We in the private sector need to build the very products and technologies we rely on in our homes, in our businesses, in the government, in healthcare, in our national defense. And all of these have to be built in India. And from smartphones to 5G networks, from mapping software, which we recently, the government initiated reforms in that area, much needed, thank you for that, to semiconductor fabs, from infusion pumps to MRI machines, from drones to fighter jets. Being able to build these products is what will make us a product nation, strong, confident, and secure. The private sector should go from the trader mindset to the maker mindset and the make in India mindset. To achieve this dream, we need to invest in R&D, strong domestic R&D, and invest to acquire the skills, the know-how, and the capabilities across our workforce. And experience in advanced countries show that these R&D centers can be actually built in rural areas. For example, from Bell Labs, IBM Research, Siemens R&D, all of these have been in rural towns, small towns and rural areas. And in India, we have a vast rural talent pool that is waiting for that opportunity to gain the advanced skills and take part in the global economy. And the private sector should play a leading role in building this capability and skills. And our own experience in our Tenkasi R&D center, where I am located, demonstrate that this is very much possible. When we achieve this, we actually will cut down our trade deficit and becomes a trade surplus. Our GDP will vastly expand and our living standards will vastly rise. So this is the vision of Atmanirbhar, and thank you for that vision, Pradhan Mantri ji, and we pledge to achieve this vision. Thank you for your time. Thank you, Sridhar. It is now my tremendous pleasure to request Pradhan Mantri ji to please share his few thoughts and deliver the opening address. नमस्कार। इस बार नेस्कॉम का टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम मेरी दृष्टि से बहुत विशेष है। एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। हमारे यहाँ कहा गया है, ना दैन्यम न पलायनम, यानी चुनौती कितनी भी मुश्किल हो, हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही चुनौती से डरकर पलायन करना चाहिए। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है, बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशंस दिए, वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मौका मिला, कुछ सीईओज ने जो बताया, इसमें भी भारत की आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है। When the chips were down, your code kept things running. जब पूरा देश घर की चार दीवारी में सिमट गया था, तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्मूथली चला रहे थे। बीते साल के आंकड़े
दुनिया को भले ही चकित करते हो, आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वाभाविक लगता है। साथियों, ऐसी स्थिति में जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था, तब भी आपने करीब 2% की ग्रोथ हासिल की। जब डी ग्रोथ की आशंकाएं जताई जा रही थी, तब भी अगर भारत की आईटी इंडस्ट्री अपने रेवेन्यू में $4 बिलियन और जोड़े, तो ये सचमुच में प्रशंसनीय है और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इंडस्ट्री ने सिद्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबूत पिलर क्यों है। आज तमाम डेटा, हर इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री का ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही नई बुलंदियां छूने वाला है। साथियों, नया भारत, हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की इस भावना को समझती है। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नए भारत से जुड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं, उतनी ही आपसे भी है, देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री ने अपने फुटप्रिंट्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बरसों पहले जमा दिए थे। पूरी दुनिया को हमारे भारतीय हमारे एक्सपर्ट्स सर्विसेज और सॉल्यूशन देने में नेतृत्व कर रहे थे, योगदान दे रहे थे। लेकिन कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है, उसका लाभ आईटी इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया। इस वजह से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया। एक तरह से हम कहते हैं, और हम कह सकते हैं, दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी। हमारी सरकार की नीतियां और निर्णय गवाह है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने इस अप्रोच को बदल दिया है। साथियों, हमारी सरकार भी ये भली भांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती, और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। सुधारों का ये सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा। कोरोना काल में ही अदर सर्विस प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को जारी किया गया, अभी जिसका आपकी चर्चा में उल्लेख भी हुआ। इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ। आपके काम को कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा। आज भी, जैसे आप में से कुछ मित्रों ने बताया, कि 90% से ज्यादा लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने मूल गांव से काम कर रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने का लाभ भी आपको होना शुरू हुआ है। साथियों, 2 दिन पहले ही
एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसका आप सभी ने भी स्वागत किया है। मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त करके इसको इंडस्ट्री के लिए खोल देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा कदम है जो इस फोरम की थीम जो है, शेपिंग द फ्यूचर टवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल, मैं समझता हूं इसके साथ एक प्रकार से आपकी समिट का पूर्वाश्रम का जो काम है वो सरकार ने कर दिया है। ये ऐसा कदम है जो हमारे टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को शाश्वत करने वाला है, सशक्त करने वाला है। ये ऐसा कदम है जो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत में व्यापक मिशन को मजबूत बनाता है। मुझे याद है आप में से अनेक एंटरप्रेन्योर्स मैप्स और जियो स्पेशल डेटा से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस और रेड टेप से जुड़ी बातें अलग अलग फोरम पर रखते रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, इन सारे विषयों में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रेड लाइट दिखाया जाता था वो सिक्योरिटी से संदर्भ भी होता था कि ये चीजें अगर खुल जाएगी, सिक्योरिटी को संकट हो जाएगा, ये बार बार आता था। लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज को भी हैंडल करने के लिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होता है, और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सीमा पर हम देख रहे हैं, और तभी इस प्रकार के निर्णय भी संभव होते हैं। ये निर्णय सिर्फ टेक्नोलॉजी के दायरे का नहीं है, ये निर्णय सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसा नहीं है, ये निर्णय सिर्फ सरकार एक नीति नियमों से हट गए ऐसा नहीं है, ये निर्णय भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत को विश्वास है कब ये निर्णय करने के बाद भी हम देश को सुरक्षित भी रख पाएंगे और देश के नौजवानों को विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाने के लिए अवसर भी देंगे। साथियों, मेरी भी जब आप जैसे साथियों के साथ चर्चा होती थी तो इस समस्या का एहसास मुझे होता था। अपने युवा उद्यमियों को, हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया में पैदा हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया है। सरकार को देश के नागरिकों पर, हमारे स्टार्टअप्स पर और इनोवेटर्स पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, बीते 6 सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स, जो समाधान तैयार किए हैं, उनको हमने गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। विशेष तौर पर डिजिटल इंडिया ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सामान्य से सामान्य भारतीय को सशक्त किया है, सरकार से उसको जोड़ा है। आज डेटा को भी डेमोक्रेटाइज किया गया है और लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी भी प्रभावी हुई है। आज सैकड़ों सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी ऑनलाइन की जा रही है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधा के साथ साथ करप्शन से भी बड़ी राहत मिली है। हमारे फिनटेक प्रोडक्ट्स और यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा तो आज पूरी दुनिया में है। वर्ल्ड बैंक समेत इसके सामर्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। कैसे 3-4 साल के भीतर भीतर एक हैवीली कैश डिपेंडेंट सोसाइटी, उससे हम लेस कैश सोसाइटी की तरफ मक्कमता पूर्वक बढ़ चले हैं, ये हमारे सामने है। जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा होता जा रहा है, काले धन के स्रोत उतने ही कम हो रहे हैं। जेम ट्रिनिटी और डीबीटी के कारण ही
आज गरीब के हक की पाई पाई उस तक बिना किसी लीकेज के पहुंच पा रही है। साथियों, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता गुड गवर्नेंस की सबसे अहम शर्त होती है। यही बदलाव अब देश की शासन व्यवस्था में हो रहा है। यही कारण है कि हर सर्वे में भारत सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत से मजबूत हो रहा है। अब सरकारी कामकाज को सरकारी रजिस्ट्रों से बाहर निकालकर डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है। प्रयास ये है कि सरकार और सरकारी विभाग की हर गतिविधि को देश का सामान्य नागरिक अपने फोन पर देख सके। जो भी काम हो वो देश के सामने हो। साथियों, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को लेकर पहले कैसे कैसे सवाल उठते थे, ये हम में से कौन है जो नहीं जानता है। हम भी तो चर्चा में वही बोलते थे, हम भी वही सुनते थे, हम भी चिंता व्यक्त करते थे। अब आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GeM के जरिए खरीद की जा रही है। आज ज्यादातर सरकारी टेंडर ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो या गरीबों के घर, हर प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि वो समय पर पूरे किया जा सके। यहां तक कि आज गांवों के घरों की मैपिंग ड्रोन से की जा रही है। टैक्स से जुड़े मामलों में भी ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जा रहा है। फेसलेस व्यवस्था विकसित की जा रही है। टेक्नोलॉजी से सामान्य जन को तेज, सटीक और पारदर्शी व्यवस्था देना ही तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मेरी दृष्टि से वही उसका मतलब है। साथियों, आज विश्व में जो भारतीय टेक्नोलॉजी की छवि है, जो पहचान है, उसे देखते हुए देश को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। आपने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया हो। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके सॉल्यूशन में भी अब मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए। अगर हमें मल्टीपल डोमेन्स में इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप की ओर आगे बढ़ना है, इस मोमेंटम को बनाए रखना है, तो हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस के नए मापदंड बनाने होंगे। हमें अपने आप से स्पर्धा करनी ही होगी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने के लिए इनोवेशन और एंटरप्राइज के साथ ही भारतीय आईटी सेक्टर को कल्चर ऑफ एक्सेलेंस और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, उस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। ऐसे में मेरा अपने स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक विशेष संदेश है। खुद को सिर्फ वैल्यूएशंस और एग्जिट स्ट्रेटेजीज तक ही सीमित मत करिए। थिंक हाउ यू कैन क्रिएट इंस्टीट्यूशन दैट विल आउटलेट दिस सेंचुरी। Think how you can create world-class product that will set the global benchmark on excellence. There can be no compromise on these twin goals, for without them, we will always be a follower and not a global leader. साथियों, इस वर्ष हम अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत सही समय है
नए लक्ष्य बनाने का, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का। अब से 25-26 साल बाद जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, जब हम सेंचुरी सेलिब्रेट करते होंगे, तब कितने नए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमने दिए होंगे, कितने ग्लोबल लीडर्स हमने बनाए होंगे, ये सोचकर हमें अभी से काम करना होगा। आप लक्ष्य तय करिए, देश आपके साथ है। भारत की इतनी बड़ी आबादी आपकी बहुत बड़ी ताकत है। बीते महीनों में हमने देखा है कि कैसे भारत के लोगों में टैक्स सॉल्यूशंस के लिए बेसब्री बढ़ी है। लोग नए टैक्स सॉल्यूशंस का इंतजार कर रहे हैं। लोग नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं और खासकर भारतीय एप्लीकेशंस के लिए तो उनमें एक उत्साह है। देश मन बना चुका है। आप भी मन बनाइए। साथियों, 21वीं सदी में भारत की चुनौतियां और उसके समाधान के लिए प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देना आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, यंग माइंड, इनका बहुत बड़ा दायित्व है। अब जैसे हमारी खेती में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत से ज्यादा उपयोग से बहुत बड़ी समस्या आती है, क्या इंडस्ट्री को ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए काम नहीं करना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हर फसल में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत के बारे में किसान को बता सके? सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने भर से ही काम नहीं चलेगा, इसको भारत में मास लेवल पर एडॉप्ट भी किया जा सके, ऐसे सॉल्यूशंस हमें तलाश करने हैं। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस के डेटा की ताकत से गरीब को लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी आज भारत आपकी तरफ देख रहा है। टेलीमेडिसिन को प्रभावी बनाने के लिए भी आपसे बेहतरीन सॉल्यूशंस की उम्मीद देश कर रहा है। साथियों, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी टेक इंडस्ट्री को ऐसे समाधान देश को देने होंगे जो देश की बड़े से बड़ी आबादी को सुलभ हो। आज देश में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर अटल इंक्यूबेशन सेंटर तक टेक्नोलॉजी के लिए स्कूल कॉलेज में ही माहौल बनाया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग पर भी उतना ही जोर दिया गया है। ये प्रयास इंडस्ट्री के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। एक बात मैं ये भी कहूंगा कि आप अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के आउटकम पर फिर ध्यान दीजिए। अगर आपकी सीएसआर एक्टिविटीज का फोकस देश के पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों पर होगा, आप उन्हें डिजिटल एजुकेशन से ज्यादा जोड़ेंगे, उनमें एनालिटिकल थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग डेवलप करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें आपका साथ मिलना तो मैं समझता हूं बात कहां से कहां ले जा सकती है। इंडिया इज नॉट शॉर्ट ऑफ आइडियाज, इट नीड्स मेंटर्स हु कैन हेल्प टर्न आइडियाज इनटू रियलिटी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के बड़े सेंटर आज देश के टियर 2, टियर 3 शहर बनाते जा रहे हैं। यही छोटे शहर आज आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज की डिमांड और ग्रोथ के भी बड़े सेंटर बनते जा रहे हैं। देश के इन छोटे शहरों के युवा अद्भुत इनोवेटर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। सरकार का फोकस भी इन छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है, ताकि वहां रहने वाले देशवासियों के साथ साथ
आप जैसे उद्यमियों को भी असुविधा ना हो। जितना अधिक आप इन छोटे शहरों कस्बों की ओर जाएंगे, उतना ही अधिक उनका विकास होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों में आप वर्तमान और भविष्य के ऐसे ही समाधानों पर गंभीर चर्चा करेंगे। सरकार हमेशा की तरह आपके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पिछली बार 15 अगस्त को लाल किले से जब मैं बात कर रहा था, आपने सुना था, मैंने देश के सामने एक लक्ष्य रखा था कि 1000 दिन में हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा करना है। अब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये तो एक स्केलेटन हो जाएगा और मैं पीछे लगा हूं तो शायद हम कर भी लेंगे, राज्य भी इसमें हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद का जो काम है ना, वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का गरीब भी गरीब इसका उपयोग कैसे करे, यूजर फ्रेंडली नए नए प्रोडक्ट कैसे आए, गांव का व्यक्ति भी सरकार से, बाजार से, बदलाव से, शिक्षा से, आरोग्य से कैसे जुड़े, ये स्केलेटन उसकी जिंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा रास्ता कैसे बना सकता है। ये काम अभी से आपके यहां छोटे छोटे स्टार्टअप्स ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए कि गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा कि गांव की इन 10 जरूरतें पूरी हो जाएगी। गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा, गांव के बच्चों के जीवन में ये चीज बदलाव लाने के लिए मेरे पास रेडी है। आप देखिए कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा अवसर है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि सरकार इस काम को कर रही है। आप सोचिए, आजादी के 75 साल के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ तय कीजिए। 2047 आजादी 100 साल के लिए मनाने की जाएगी। आपका रोड मैप क्या होगा, आपके लक्ष्य क्या होंगे, उन लक्ष्य को लेकर के कैसे चलना, उस पर तय कीजिए। हमें लीडरशिप लंबे अरसे तक लेनी है, हर क्षेत्र में लेनी है, पूरे सामर्थ्य के साथ लेनी है। और इस लीडरशिप के आपके इस चिंतन मनन से वो निकलेगा, वो अमृत देश को काम आएगा। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस एवरी टाइम यू स्पीक टू अस। आप हमारी सोच यहाँ से यहाँ ले जाते हो हर बार आप जब हमसे बात करते हो। थैंक यू सो मच। And I would now like to request our NASSCOM chairperson, Praveen Rao, to please give the vote of thanks. Namaskar, Pradhan Mantri ji. Thank you very much for your inspiring words and direction for our industry and the country. Even today, our clients are impressed with strides made by Digital India. They are amazed with the scale and magnitude of what we have achieved. Technology is and will remain the Brahmastra for India's growth in the coming decade. We want to take this opportunity to thank you for your continued guidance to both NASSCOM and all its members. India at 75 represents a new India driven by digital data and demographics. We look forward to continued support from the government. And on behalf of the industry, we want to assure you that we will leverage technology to drive innovation, help India become a global power in technology, as well as address some of the big challenges that the country is facing today. Our relationship is very special and has grown from strength to strength under your leadership, and look forward to continue the same. Thank you once again for spending and sparing. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।